हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप लोगों का इस हमारे चैनल में। और आप लोगों को पाई नेटवर्क में बहुत बड़ी जो एक गुड न्यूज़ चल रही है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पाई के जो माइनिंग करने वाले यूज़र हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो है जीसीबी की वैल्यू। जीसीबी वैल्यू वो वैल्यू जो $314,159 है। एक पाई की कीमत 3,14,159 जो है एक पाई की कीमत, इसको कहते हैं जीसीबी की कीमत। तो ये क्या एक पाई की जीसीबी की कीमत आ सकती है? हाँ, 100% आ सकती है। जो लोग कहते हैं कि नहीं आएगी, कुछ यूट्यूबर भी कहते हैं कि ये बहुत बड़ी कीमत है, ये कभी नहीं आएगी, तो उनको मैं बताता चलूं एक वीडियो के माध्यम से, लाइव प्रूफ दिखाते हुए कि वहाँ पे बताया गया, दिखाया गया है कि जो यूएस की गवर्नमेंट है वो किस तरीके से पाई को सपोर्ट कर रही है और जीसीबी की वैल्यू को सपोर्ट कर रही है। अगर यूएस की गवर्नमेंट उस पाई को सपोर्ट कर रही है, उस जीसीबी की वैल्यू को सपोर्ट कर रही है, तो जाहिर सी बात है वो ऐसे ही नहीं कर रही है, कुछ उसको उसमें लगा, पाई ऐप में कुछ लगा, और बहुत सारी चर्चाएं होंगी। आपकी प्रॉब्लम्स पे भी चर्चा होगी, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है उस पे भी चर्चा होगी। आइए चलते हैं, पहले देखते हैं। उस वीडियो को देखना है अच्छे से, उस वीडियो को जरूर देख लेना, समझ लेना, उसके बाद चर्चा करेंगे हम कुछ और चीज़ों पे जो प्रॉब्लम्स हैं उस पे। Inviting me to testify today. I'm so honored to be here, and I look forward to discussing the Digital Commodities Consumer Protection Act. My name speak about the opportunities that are presented by the DCCPA. I'd like to share a bit more about the Stellar Development Foundation and the Stellar Network, and most importantly, the real-world solutions built with this technology. The Stellar Development Foundation, or SDF, was established alongside the Stellar Network in 2014 with the mission of creating equitable access to the global financial system by using the underlying technology presented by Stellar. The Stellar Network is an open, permissionless, decentralized ledger, or a blockchain network, optimized for payments and asset issuance, particularly useful with stablecoins in payments. Today, rather than talking about the things that we read about in the press with respect to trading or speculation, I'd like to highlight a payment service that was built on Stellar, launched in the dead of the crypto winter this summer. In June, MoneyGram, Circle, and a growing number of digital wallets launched a first of its kind global service that enables anyone to convert cash to digital assets without a bank account, without a credit card. This service utilizes the Stellar blockchain and Circle's USDC coin, it's a stable coin, to allow cash funding and payout in different currencies all around the world. The Stellar network provides the digital rails to make payments fast and secure. USDC provides a truly stable digital asset, and while MoneyGram provides a global network of cash in and cash out locations. This is true interoperability with the existing financial system. In practical terms, what this means is that an immigrant farm worker in Michigan or Kansas or California or anywhere in the world can send her hard-earned cash to her family and to her home country without experiencing outsized fees or uncertain wait times. She can walk into a local MoneyGram location, typically a supermarket or a pharmacy, with $100 in cash, and in minutes from start to finish, she can convert that $100 into virtual dollars in USDC. And that's deposited directly into her digital wallet. On the other side of the transaction, her parents could visit their local MoneyGram location and cash out of their own USDC from their digital wallet that she sent to them into their local fiat currency when they need that. This is available right now and is being used right now. This novel service gives neglected, unbanked, underbanked, and cash-reliant populations a pathway to enter the digital economy. So let me turn now to the legislation.
The DCCPA goes a long way towards allowing the kind of regulatory framework that will offer the opportunity for these types of payment services to flourish. And it also by identifying the CFTC as the spot market regulator. The agency's history of vetting and approving new products demonstrates it is well suited for this type of responsibility. We also applaud the focus on consumer protection and education and its inclusion of the study on energy consumption related to digital commodities. It is also encouraging to see that this bill sets out a process for listing stablecoins and that it is consistent with the PWG report with payment stablecoins not being included as securities. We agree with that, and they're necessary for payments. Rightfully, the DCCPA has defined a digital commodity while recognizing the SEC's jurisdiction. Unfortunately, it fails to address the fundamental question that plagues this industry and has for far too long. When is a digital asset considered a commodity versus a security? The Howey test does not include a clear definition, and it was not an agency-created rule. The industry desperately needs a definition, and the DCCPA is the perfect vehicle for it. Not all digital assets are created equal. As an example of the challenges we face defining digital assets, I referenced the Minnesota and Iowa state fairs in my written testimony, which require tickets in order to experience the full fair experiences, much like you need digital assets. Good morning, Chairwoman Stabenow, Ranking Member Bozeman, and members of the committee. Thank you for inviting me to testify today. I'm so honored to be here, and I look forward to discussing the Digital Commodities Consumer Protection Act. My name is Danelle Dixon, and I am the CEO and Executive Director of the Stellar Development Foundation. Before I speak about the opportunities that are presented by the DCCPA, I'd like to share a bit more. आप लोगों ने वीडियो को देखा, समझा, सुना। उसमें उन्होंने एक सुटेबल कॉइन को बताया कि जैसे यूएसडीटी एक सुटेबल कॉइन है, उसी तरीके से पाई नेटवर्क जो है सुटेबल कॉइन बनने वाला है। और यहाँ तक कि हम कहना चाहेंगे आप लोगों से कि पाई नेटवर्क और पाई कॉइन, तो पाई कॉइन को जो है आप लोग सभी लोग जीसीबी की वैल्यू को सपोर्ट करो। जब यूएस की गवर्नमेंट जो है जीसीबी की वैल्यू को सपोर्ट करना चालू कर दिया है, तो आप लोग सभी लोग चालू कर दोगे तो जीसीबी की वैल्यू को आने में समय नहीं लगेगा। यहाँ तक कि हम ज़्यादा वीडियो में दिखाना चाहते नहीं हैं हर वीडियो में किसी चीज़ को, तो जीसीबी की वैल्यू क्यों आना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम बताते चलें कि पाई नेटवर्क कैसे काम करेगा, पाई कॉइन कैसे एक्सेप्ट होगा, कैसे हम बैंक अकाउंट में पैसा लेंगे, पाई कॉइन हम कितनी जगह यूज कर सकते हैं। पाई कॉइन नंबर 1 हम सेल कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज पे ले जाके। उसके बाद पाई कॉइन से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इसी तरीके से। नंबर 3 क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एनर्जी फूड हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, बहुत तमाम सारी ज़रूरत की चीज़ें हम ऑनलाइन यूज कर पाएंगे। उसके बाद 4 नंबर में हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे एटीएम के थ्रू। तो ये कई प्रकार से पाई जो है एक्सेप्ट होगा, कई तरीके से हम एक्सचेंज कर पाएंगे, कई तरीके से यूज ले पाएंगे पाई का। आप लोगों ने देखा है कि कोई भी जो करेंसी है वो अपने आप में ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कराती है, ऑनलाइन एटीएम से पैसा नहीं निकालती है, ऑनलाइन हम एनर्जी फूड या रेस्टोरेंट अन्य कई चीज़ें हम नहीं करते हैं, शॉपिंग नहीं करते हैं। तो ये जो है पाई नेटवर्क किस तरीके से वर्क करेगा, जैसे हमारा जो INR है इंडिया का, उसी तरीके से ये पाई नेटवर्क भी काम करेगा। तो पाई नेटवर्क को अब समय नहीं बचा है कि आप लोगों को ओपन नेटवर्क का इंतजार करने का, क्योंकि 14 मार्च को ओपन नेटवर्क आ रहा है। मैंने बताया है पहले भी
और यहाँ पे ये हमने क्यों कहा है, क्योंकि डॉक्टर निकोलस कोकोलस ने खुद कहा है कि क्वार्टर फर्स्ट 2025 में ओपन नेटवर्क आएगा। और यहाँ पे इन्होंने माइग्रेशन और चेक लिस्ट कंप्लीट करने का जो भी केवाईसी का प्रोसेस का जो समय लास्ट रखा है डेट, वो 31 जनवरी लास्ट डेट है। और 31 जनवरी के बाद फरवरी और मार्च, तो मार्च में 14 मार्च को संभवतः ओपन नेटवर्क आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों के सवाल ये हैं कि आपकी केवाईसी, बहुत सारे हमारे मित्र हैं उनको केवाईसी का स्लॉट नहीं मिला है। जिनको अभी केवाईसी का स्लॉट नहीं मिला है तो उनको क्या करना है, सपोर्ट पोर्टल पे जाके आपको रिक्वेस्ट डाल देनी है। जिनका केवाईसी अभी पेंडिंग में पड़ा है उनको भी सपोर्ट पोर्टल पे रिक्वेस्ट डाल देनी है। यहाँ पे हम बता दें कि हमारे मित्र कहेंगे कि हमने सपोर्ट पोर्टल पे जो है, सपोर्ट पोर्टल पे कई बार रिक्वेस्ट डाल दी है, उससे मैटर नहीं करता है। यहाँ पे पाई की कोर टीम ने फिर से कहा है कि आपका कोई भी स्टेप जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, केवाईसी नहीं हो रहा है, माइग्रेशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको सपोर्ट पोर्टल पे जो है एक अपील डालनी है। यहाँ पे देखिए अपील लिखा है, अपील रिसबमिट, तो आपको अपील डाल देनी है। अपील डाल दोगे तो आप उसमें जुड़ जाओगे। कि ऐसा नहीं है कि आपका जो है पाई जीरो हो जाए, जीरो नहीं होगा। हो सकता है आपका आगे टाइम बढ़ा दिया जाए, हो सकता है आपको वो स्लॉट जल्दी मिल जाए, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएं। तो उसका आपको क्या करना है, अपील डाल देनी है। बाकी कल और आज ही दूसरा वीडियो आपको मिलेगा, उसमें आपके जो भी कमेंट हैं, आपने जो वीडियो पे किए हैं, उन कमेंट के जरिए आपको जो सवाल हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में जिन लोगों के कमेंट आएंगे उसके भी जवाब मिलेंगे। जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किए थे, आपके जो सवाल थे, उन सभी के कमेंट अगली नेक्स्ट वीडियो में आज ही प्राप्त होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे क्या हो, पाई नेटवर्क में जीसीबी की वैल्यू को सपोर्ट मिले। आप लोग नहीं चाहते हो कि जीसीबी की वैल्यू निकले। अगर आप चाहते हो तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।